So we did in the last class that was Levinson's X efficiency theory. X efficiency means the things which is being left up. Suppose if we study out the 4 hour, then what would be the maximum results we can have? If we have studied the 2 hour, then there is an actual result. So the maximum result minus the actual result, the whatever the left option is there, that is the X part. That is the X efficiency. So Levinstein has having the theory regarding the entrepreneur for the X efficiency part, that he had identified the two roles for the entrepreneurs, that was a gap filler and the input completer. Gap filler means the related to the gap between the product and the market, यानी कि उस प्रोडक्ट की रीच मार्केट तक कैसे अच्छे से इंक्रीज करी जा सके, मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जा सके, how the product can be raised more. So that is the gap filler, where the product is to be filled up with the all impressions, that entrepreneurs will fill out the gaps so that the product reach to the market and comes into the motion that gives out the clear rays of the product. So the functions arises from the basic assumption of the X efficiency theory, thus that it clears it if it not all factors of productions are marketed, यानी कि जितने भी factors हैं production के वो market नहीं हुए हैं, and if there are imperfections in the market, यानी कि market में कुछ imperfections हैं, and the entrepreneur has to fill those gaps in the market, यानी कि entrepreneur की वो ड्यूटी है, वो रोल है, दैट ही हैज टू बी देयर टू फिल आउट दोज गैप्स. सपोज करिए मार्केट में कुछ ऐसा लॉन्च कर दें कि जिससे कि सोशली कुछ लोगों, सोशली पब्लिक का कुछ काम आसान हो जाए. सो दैट इज द गैप फिलर, वेयर द एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे या ऐसी कोई सर्विसेज लॉन्च कर दे that it should fills out the gap between those particular work to be done, that entrepreneurs fill out those gaps. So that's why he has taken up this particular role for the entrepreneurs. So to put the enterprise in motion, यानी कि enterprise को movement में लाना, startup करना, entrepreneur should fill out the enough of the gaps. The second role is input completion, यानी कि किसी भी चीज को कंप्लीट करना, वेदर इट वुड बी द मार्केट को कंप्लीट करना, या किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट करना, या किसी सर्विसेज की कोई इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसे कंप्लीट करना. सो ऑल दोज पार्ट्स कैन बी टेकन अप एज द सेकंड रोलर, that can be the input completion, which involves making available inputs that improve the efficiency, यानी कि जितने भी inputs available हैं उसे involve करना, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना, या मेथड्स में कुछ चेंज लेके आना, या फैसिलिटेट करना, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर देना लोगों के लिए. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, यानी कि फ्लो कुछ चेंज करना, मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना, मार्केट में नई सर्विसेज देना, या नई मार्केट ही इंट्रोड्यूस कर देना. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स कैन बी एन इनपुट कंप्लीटर or input completion from the duty of the entrepreneur as per the Levinstein X efficiency theory. Moving on to the next, the risk bearing theory of Knight. So the key element of entrepreneurship is the risk and risk bearing. यानी कि entrepreneurship की सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और सबसे बड़ा की एलिमेंट क्या है कि रिस्क लेना और रिस्क को बियर करना. This is going to be the main key element of the entrepreneur as per the Knight. So Professor Knight, John Stuart Mill, saw a risk bearing as an important functioning of the entrepreneur. यानी कि प्रोफेसर नाइट ने क्या फील आउट किया, दैट रिस्क बियरिंग इज एन important function of the entrepreneurs. Features of risk bearing theory of Knight. First one is that risk creates profit.
यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आप उतने प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी द कैलकुलेटेड वन। अगर आप अंधों की तरह पैसा लगा दोगे so that's not gonna work it out. So you have to take your decisions, you have to take the risk very miserably and the calculated manner. According to the risk bearing theory, the entrepreneur earns profit because he undertakes risk. Entrepreneur profit इसीलिए अर्न कर पाता है because वो रिस्क उठाता है. So he carries out the risk and entrepreneur earns the profit. Next is more risk, more gain. The degree of risk varies in different industries. यानी कि जो भी रिस्क हैं वो हर इंडस्ट्रीज के ऊपर हर इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं. दैट एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इंक्लिनेशन. यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, अपनी पॉकेट्स के अकॉर्डिंगली, अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंगली दे टेक द रिस्क so that they can handle out those part. And जो जितना एंटरप्रेन्योर हैंडल आउट कर सकता है, जो जितनी एबिलिटी रखता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना रिस्क उठाता है. So the risk theory proposes that the more risky the nature of the business, the greater must be the profit earned by it. यानी कि रिस्क थ्योरी क्या प्रपोज कर रही है कि जितना ज्यादा बिजनेस का नेचर होगा रिस्की, उतना ज्यादा ही प्रॉफिट अर्न करके देगा. सपोज लाइक दैट, इफ विल टेक आउट, अगर हम कोई शेयर मार्केट पकड़ लेते हैं, सो इट्स वेरी रिस्की इन नेचर अगर हम शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट we can earn the maximum profit from that in a single day. So that is how the more the nature in the risk of the business, the more will be the profit earned. Next is profit as reward and cost. Profit is the reward of entrepreneur for assuming risk. Hence, it is treated as a part of a normal cost of production. यानी कि प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड की तरह ट्रीट किया गया है एंटरप्रेन्योर ने, क्योंकि वो एज रिस्क लेता रहता है. So the risk taking capability of the entrepreneur, it's going to reward in the form of profit share. So hence it is treated as a part of normal cost of production. यानी कि रिस्क को क्या किया गया है, एक नॉर्मल पार्ट लिया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, कि इट्स अ जेन्युइन पार्ट की जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, रिस्क को भी उसका एक फीचर और उसका एक वन ऑफ द पार्ट एज अ वी हैव टेकन इट अप, सो दैट कि जितना हम रिस्क लेंगे हमारा जो सा एंटरप्रेन्योर का, that will be going to be reward in the form of profit share. Next is entrepreneur income is uncertain. Definitely, entrepreneur's income is going to be uncertain because he's putting up or she's putting up his money in a very risk factor. So the market is, or you know that that is very uncertain. It can be sometimes very high, it can be very low. So the product or the shares or the organizations varies the very uncertainty as per the market scenarios. So entrepreneurs' incomes also varies as per that scenarios. So this theory summarizes that, Professor, that the reward of the entrepreneur efforts, the reward of the entrepreneur's effort summarizes that the reward of the entrepreneur's effort, profit क्या है, entrepreneur का reward है, जो entrepreneur efforts लेता है, which arises from the bearing of the insurable risk. यानी कि जो रिस्क वो उठा रहा है एंटरप्रेन्योर, उसी का रिवॉर्ड ही है वो प्रॉफिट. एंड अनसर्टेनिटीज एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड, अनसर्टेनिटीज हैं और जो अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न किया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग. यानी कि हम कितनी अनसर्टेनिटी बियर कर सकते हैं, उसी पे हमारा प्रॉफिट और उसी पे हमारा प्रॉफिट अर्न डिपेंड करता है. आई गिव यू वन एग्जांपल फॉर दैट, कि जनरली पीपल इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स. आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी, म्यूचुअल फंड इज सस्पेक्ट टू द मार्केट रिस्क.
तो क्या मार्केट नीचे जा रही है तो म्यूचुअल फंड्स के प्राइसेस भी नीचे जाएंगे, मार्केट ऊपर जा रही है तो म्यूचुअल फंड्स की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे. सो दैट इज द अनसर्टेनिटी बियरिंग कि आप कितने लॉस तक उसमें फिर भी पैसा लगाए जा रहे हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स इज फॉर द लॉन्ग टर्म. आप 15-20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि जितना मार्केट लो जाएगी आप ये मान के चलिए उतने शेयर्स आपके ज्यादा आएंगे आपके. तो दैट्स गोइंग टू रेज अप इन नियर फ्यूचर. जब मार्केट रेज होगा तो वो आपके शेयर्स उस प्राइस से बहुत ज्यादा इंक्रीज आएंगे. सो दिस इज द काइंड कि आप कितनी अनसर्टेनिटी को बियर आउट कर पा रहे हैं उतना आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. सो दैट इज द एंटरप्रेन्योर इनकम इज अनसर्टेन. So the next topic is venture capital. Venture capital means funds made available for startup firms and small businesses with exceptional growth potential. यानी कि जो उनसे वेंचर कैपिटल्स हैं क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स द फंड अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप्स. यानी कि जो नए नए कंपनीज खुली हैं या जिन्होंने स्टार्टअप करी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करने की कोशिश करें, ये उनके लिए फंड्स अवेलेबल करती हैं. That funds available for the startups and the small businesses which those who are having exceptional growth potential. यानी कि जिस organization में growth के chances ज़्यादा हैं, they are having the most likely chances to grow out as per the owner's potential, as per the organization products potential, as per the owner's services potential. So all those potentials are to be carried out and checked it out. And on that basis, venture capitals is being invested up in the small startups and the small industries, those who are having the chances to grow. Because at last, वेंचर्स ऑल्सो वांट टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स देंगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाएंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके आइडिया में कुछ कैपेबिलिटीज होंगी, कुछ चांसेस होंगे फ्यूचर ग्रोथ के. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल इज मनी प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स. यानी कि वेंचर कैपिटल क्या है, मनी है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अप बाय द प्रोफेशनल्स. जो मार्केट में प्रोफेशनल्स या हायर मैनेजमेंट्स जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, सो दोज आर द वेंचर कैपिटलिस्ट हु alongside with the management invest in young and rapidly growing companies. यानी कि वो लोग हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो सीईओज हैं जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, वो पैसा लगाती हैं नए लोगों के ऊपर, नई ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जिनमें कुछ पोटेंशियल होता है, दैट हैव द पोटेंशियल, जिनमें कुछ पोटेंशियल है टू डेवलप इनटू अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर. यानी कि जो मार्केट में लेटर ऑन 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मार्केट में कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे इकोनॉमी का. दैट मीन्स देयर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, that means their owner will grow, that means their product will grow. So they are going to have a significant contribution in the economic growth of the world or of the country or of the organization. So with this, अगर वो स्टार्टअप कंपनी और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वेंचरिस्ट का, कैपिटलिस्ट का पैसा भी ग्रो करेगा. सपोज वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट 2 करोड़ की कंपनी की कॉस्ट है और वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट देता है, सो 50% शेयर पार्टनरशिप इज देयर. तो कल को 3 साल बाद जाकर के अगर कंपनी की प्राइस जाके 260 करोड़ पड़ जाती है, सो द वेंचर कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 1 करोड़ टू 130 करोड़ बिकॉज उसका भी 50% शेयर होल्डर है. So this is how the venture capitalists invest on those young minds and those young ideas and those organizations जिनमें potential दिखता है उन experienced लोगों को, उन professionals को, जो कि नियर फ्यूचर जाकर के वो एक अच्छा प्रोडक्ट्स और एक अच्छी सर्विसेज निकालेंगे जिसका फ्यूचर अच्छा है. So they invest in that. Venture capitalists generally, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज. यानी कि या कोई कंपनी न्यूली लॉन्च हुई है या कोई कंपनी मार्केट में अच्छा ग्रो कर रही है तो वो उसे फाइनेंस देते हैं, उसे हेल्प आउट करते हैं, सो दैट देयर मनी शुड आल्सो ग्रो. नेक्स्ट इज परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज. यानी कि जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं या जिनके आइडियाज वेंचर्स को पसंद आ जाते हैं या जिनको लगता है कि इनका आइडिया आगे चल के बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, वो उनके साथ इक्विटी सिक्योरिटीज शेयर आउट करते हैं, वो पैसा लगाते हैं और उनके कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी के परचेज कर लेते हैं एट द लोअर प्राइसेस व्हेन द कंपनी टू बी ग्रोन अप. बिकॉज लेटर ऑन जब ग्रो हो जाएगी, जब फुल स्केल पे आ जाएगी इंडस्ट्री, देन द प्राइसेस विल बी ग्रोइंग आउट. So next is assist in the development of new products or services. यानी कि
जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं न्यूली यंग पीपल एंड द यंग जनरेशन टू असिस्ट देम इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स और द सर्विस। यानी कि उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें अपना उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब वो न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या सर्विस डेवलप कर रहे हैं उनमें उनका कंट्रीब्यूशन अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो दे सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट इज ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि अगर वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस स्मॉल इंडस्ट्री में, उस स्टार्टअप में, तो क्या होगा, देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, देयर एक्टिव एक्सपीरियंस इज गोइंग टू गिव बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप, बिकॉज उन्होंने भी कुछ सिचुएशन से निकल करके ही अपनी इस कंपनी को बड़ा बनाया होगा। So their experience will be going to have a lot benefit to the startup, जिससे कि वो अगर एक्टिवली उस कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना सजेशंस और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं विद द मनी ऑल्सो, so this is going to add the value to the company because that experience must most matters for the organization to grow. The next is ACBI. ACBI has defined that venture capitalist fund in its regulation 1996 as, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को किस तरह से रेगुलेशन 1966 में डिफाइन किया गया, दैट फंड एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। जो फंड एस्टेब्लिश यानी कि एक कंपनी जो बनाएगी उसमें फंड एस्टेब्लिश यानी कि पैसे लगाए गए हैं, या एक ट्रस्ट बनाया गया है, कंपनी बनाई गई है या एक ट्रस्ट बनाया गया है, विच रेजेस द मनी, जो पैसा रेज करता है कहाँ से, थ्रू द लोन्स या डोनेशंस या इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि अपने कुछ सिक्योरिटीज डिपॉजिट करके वो पैसे को रेज करते हैं, या कुछ यूनिट्स यानी कि अपने कंपनी का कुछ शेयर आउट्स या यूनिट्स सेल आउट करके काम करते हैं। सो एज द केस मे बी, कोई भी केस हो सकता है इनमें से, एंड मेक्स और प्रपोजेस टू मेक्स एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन चीज़ों को लेकर के वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो इन दिस अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशन, यानी कि इन चीज़ों को लेकर के अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट बिकम्स द सेबी डेफिनेशंस फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। Next is the characteristics of the venture capitalist. That is long time horizon. वेंचर कैपिटलिस्ट कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी आदमी के ऊपर नहीं लगाते हैं। दे लुक आउट फॉर द लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन, दे लुक आउट फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कंपनी को फायदा तभी होगा, उस वेंचर कैपिटलिस्ट को फायदा तभी होगा when it is being invested for the longer duration. Suppose कल को कोई कंपनी स्टार्ट होती है एंड साल भर में उसकी कुछ कंपनी ग्रो करती है एंड लोगों को आइडिया पसंद आ रहा है, सो इफ आई इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, आई विल नॉट लुक आउट फॉर द 1 ईयर और द 2 ईयर, बिकॉज इतने में तो ऑर्गेनाइजेशन शायद प्रोडक्शन स्टार्टअप कर पाएगी या मार्केट में प्रोडक्ट लाइटली लॉन्च ही कर पाएगी। बट अगर मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी अगर 4-5 साल वेट करा जाए, यानी कि हम 10 से 12 साल का वेटिंग टाइम पीरियड या लॉन्ग टाइम पीरियड लेकर के चलेंगे, सो मार्केट अगर उस प्रोडक्ट में कैपेबिलिटी है, अगर उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अगर उस मैनेजमेंट में कैपेबिलिटीज हैं, तो प्रोडक्ट विल ग्रो एंड देन इट इज गोइंग टू रेज द वेंचर कैपिटलिस्ट अमाउंट ऑल्सो, जो वो उस कंपनी उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ लिक्विडिटी। लैक ऑफ लिक्विडिटी, सो हेयर द वेंचर कैपिटल प्लेज द रोल, कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे कैश पैसा, लिक्विडिटी, पैसे की कमी होती है। सो द that much amount is not being available with the young people for the startup companies. So big ventures क्या करते हैं, उस liquidity, उस पैसे की कमी को वहाँ पे वो पूरा कर देते हैं। Those professionals deal out with money, that they buys the equity shares from the company, or you can say they invest in their small organization with their idea and with their the thinking level of the owner entrepreneur, or the you can say the aim of the entrepreneur. On that basis, the big capitals apply their liquidity funds to the small organizations. Next is high risk. Venture capitalists are having the high risk because if after getting the money, startups को अगर पैसा मिल जाता है उसके बाद, and feel they feel that they had got the things, they are able to manage it out, but if they are not aiming successfully for that particular the which they had given shown to the capital venture,
So this is going to be a high risk for the capital ventures because if the small organization is not taking this seriously and not working hard, so that money can be wasted. Next is equity participation. Equity participation is that when big ventures like some idea of the small startups or the product, then they invest the money in the small organizations on the behalf of equity participation. Equity, that means they share out the particular ownership of the organization by investing the amount in that particular startup or the small industry. Next is participation in management. So big ventures plays a better role in the participation in management if they participate in that, because their experience, their decision making quality, and the situations they had seen through their past, so they can share out with the new young people, and they can guide them, and they can experience the share their experience with the new young people, and this is going to be better, give the provide the better opportunities to the young people's mind and the small startups. Next are advantages. As I'm having 2 minutes break. Okay. So let's continue with the advantages. It injects long-term equity finance, which provides a solid capital base for the future growth. यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, दैट इट इंजेक्ट्स द लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, यानी कि वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन द इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी फाइनेंस, यानी कि वो कुछ पर्टिकुलर शेयर्स लेकर के उस ऑर्गेनाइजेशन के, एंड दे इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल organization for the longer duration, which is going to provide a solid capital base, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक सॉलिड कैपिटल बेस बना देंगे जिसमें वो पैसा लिक्विडिटी फंड्स दे रहे हैं, that will leads to that particular small organization for the future growth, for the venture capitalist amount also, for the equity amount also, and as well as for the small organization also. Next is the venture capitalist is a business partner sharing both the risk and the rewards. यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, एक बिजनेस पार्टनर की तरह ही है, बिकॉज उसने अपना पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है. सो जैसा वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी, वेदर इट वर्क्स आउट, तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे प्रॉफिट शेयर के रूप में. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं करती है तो रिस्क भी रहेगा. सो बोथ द पार्ट्स आर देयर विद द वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो, कि जैसा वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी, वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा भी उसी वे में परफॉर्म आउट करेगा. सेम रिस्क भी उनके लिए सेम रहेगा और रिवॉर्ड्स भी सेम उनके लिए रहेंगे जैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी. सो द वेंचर कैपिटलिस्ट आर रिवॉर्डेड बाय द बिजनेस सक्सेस एंड द कैपिटल गेन्स. सो वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे रिवॉर्ड होंगे? जो बिजनेस सक्सेस करेगा, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, जो वहां पे प्रॉफिट शेयर आएगा, वही दैट विल बी द कैपिटल गेन फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटलिस्ट इज एबल टू प्रोवाइड practical advices and assistance to the companies based on the past experience with other companies which were in the similar situations. यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, विल बी एबल टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एडवाइस, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे पाएंगे नई यंग जनरेशन्स को, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को, असिस्ट कर पाएंगे उन कंपनीज को जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से प्रोफेशनल सीख करके उस नई कंपनीज में उन सिचुएशंस से उन्हें बाहर निकालने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं. So these are the venture capitalists which are going to share their experience with the smaller organizations or the young entrepreneurs with which they are also faced the same situations in their past experiences, which is going to helpful to them in the to come out from that particular bad phase. The venture capitalist also has a network of contacts in many areas that can add value to the company. यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, इतने पुराने मार्केट में बैठे हुए हैं, सो दे आर हैविंग अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ द कॉन्टैक्ट्स
that in many areas they can add the value to the company, यानी कि वो उस कंपनी को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को रेफर आउट कर सकते हैं, प्रेफरेंस दिलवा सकते हैं बाकी इंडस्ट्रीज में, that they can refer out the products of those particular small organization because they are having the many contacts as they are already established as a venture in the experiences. Next is venture capitalist may be capable of providing additional rounds of funding should it be required to the finance growth. Venture capitalist क्या है? That may be capable of providing that venture capitalist may be capable of providing additional rounds of funding should it be required to the finance growth, यानी कि जो भी कैपेबिलिटीज हैं वेंचर्स की वो अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली वो दोबारा फंडिंग्स दे सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और द young entrepreneurs, because if they are having the capabilities और ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबिलिटी है ग्रो करने की, तो क्या करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट दोबारा से पैसा और थोड़ा पैसा उसमें अगेन फंड्स दे सकते हैं. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंपनी. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, एक्सपीरियंस होते हैं किस एक प्रोसेस के अंदर जहाँ पे कंपनी को प्रिपेयर किया जाता है दैट फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी कि आईपीओ, यानी कि उस इंडस्ट्री के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज तक लेके जाने के लिए या ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज लेकर के जाने, यानी कि कंपनीज के शेयर्स को वो नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट कर सकें. For that particular up to that particular level, the venture capitalists are experienced and they can guide the young entrepreneurs and the small organizations take out with their process and help them to move up for the further growth by sharing their shares to the national and the international levels. Next is stages of financing. First is seed money. Seed money is low level financing needed to prove a new idea. यानी कि लो लेवल फाइनेंसिंग है जो मनी रिक्वायर्ड एट द जनरेशन ऑफ द आइडिया की, यानी कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर द मनी इज रिक्वायर्ड कि जैसे आपके दिमाग में आइडिया आता है उस आइडिया को कहीं तक रजिस्टर करना है या उसका नाम रजिस्टर करना है, उसे एग्जिस्टेंस में लाना. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी नीड द सीड मनी. Next is the startup early stage firms that needs funding for expenses associated with the marketing and the product development. यानी प्रोडक्ट को डेवलप करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करना है, और उसके लिए कुछ मशीनरी लेनी है या उसके लिए कुछ चीज़ें हमें गैदर आउट करनी है, जगह लेनी है एंड ऑल दैट. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस सेकंड स्टेज इज द स्टार्टअप. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी नीड द फाइनेंसेस. नेक्स्ट इज द फर्स्ट राउंड फॉर द अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, यानी कि अब हमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर आउट करना है, उसको बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसे सेल्स तक लेकर के जाना है. सेल्स कैसे होगी मार्केट में, कैसे वी हैव टू फ्लो आउट, we have to make the relationship. For that particular purpose the first round is the there for needing the finance. Next is the second round, working capital for early stage companies that are selling products but not yet turning into a profit share. यानी कि अब कंपनी क्या है, आपने प्रोडक्ट्स सेल करना शुरू कर दिया है बट लेकिन कंपनी अभी प्रॉफिट शेयर तक नहीं पहुंची है. सो दिस इज, यू कैन से दिस इज द सेकंड राउंड ऑफ द स्टेज ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट इज थर्ड राउंड, also called the mezzanine financing. This is the expansion of money for the newly profitable company. That means this is the stage where the new organization comes to a profit level, whether it would be the minimum profit level, but it comes to the profit level. So that's why this is being known as the third round of stage of finance. And the last, that is the fourth round, when this is also called as the bridge financing. It is intended to finance the going public process. यानी कि this is going to be a part where the companies now get established up and they are going to intend to finance the other companies, other small organization with which the other organization can grow and their venture capitalist amount also can grow. So this is the fourth round
stage of finance. Okay, so these are the risk in each stage. अब हर स्टेज के अंदर हमारा कुछ ना कुछ रिस्क है, because we are investing, we are taking money, and we are making our money investment for the registration of the company, or the product manufacturing, or the launching of the product, or the marketing of the product, or moving to the company organization, selling हो रही है but profit नहीं आ रहा, profit आ गया तो अब उसे कैसे और increase करें. So all their risks are there at the each particular stage. So what are those? Let's see to it. Finance stage. The first stage is the seed money. The period funds locked in the years. यानी कि कितने साल के लिए, 7 से 10 साल के लिए will lock the period, locking period is there. And risk preparation is extreme, क्योंकि अभी कंपनी का कुछ पता नहीं, सिर्फ आइडिया के ऊपर ही काम हो रहा है. So for supporting a concept or idea or research and development for the product development, यानी कि एक्टिविटी किस चीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं, वो एक आइडिया को फाइनेंस कर रहे हैं, वो एक कंसेप्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, किसी रिसर्च के लिए अभी फाइनेंस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स द रिस्क जो सा वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ हवा में बातें हो रही है कि ये चीज़ बनाई जाएगी, ये मेरा प्रोडक्ट होगा, ये ऐसे ऐसे काम करेगा, मैं इस पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ. सो दिस इज द अमाउंट विच हैविंग द एक्सट्रीम रिस्क फॉर देयर. नेक्स्ट इज स्टार्टअप. The you can say the very second stage of the finance, that's locking period is for 5 to 9 years. The risk is also very high, because यहाँ पे हमारा operations, यहाँ पे हमारी developing strategies, prototypes, किस तरह का product बनेगा, उस चीज़ को हम finance करेंगे, ये चीज़ बनेगी, ये हमारे operations होंगे, इस तरह से manufacturing करेंगे. So this is the activity to be finance. किस activity को finance करें? Initializing, यानी कि initialize operations, यानी कि जो चीज़ हमें ऑपरेशन में लानी है उस चीज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम स्टार्टअप ही कर रहे हैं. या डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स, यानी कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका प्रोटोटाइप अभी बना रहे हैं कि वो किस तरह से दिखेगा, उसका डिजाइन, उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अभी हमने उस चीज़ को फाइनेंस आउट किया. नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज. द पीरियड इज 3 to 7. द रिस्क इज हाई फॉर दैट. किस एक्टिविटी को हम दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, दैट इज द स्टार्ट कमर्शियल्स, प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग, यानी कि अब हम अपने प्रोडक्ट की कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोडक्शन करने वाले हैं और उसकी मार्केटिंग करने वाले हैं. बट रिस्क स्टिल है कि मार्केट में जा करके वो प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, या जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करें वो प्रोडक्शन के लिए अच्छा है या नहीं है, वो मार्केट में जब जाएगा तभी पता लगेगा. सो दैट्स व्हाई द रिस्क इज हाई. नेक्स्ट इज सेकंड स्टेज. The second stage, the period is 3 to 5, and risk preparation is sufficiently high. Not that much very high, sufficiently high, because अब क्या आपका मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब प्रोडक्शन हो चुकी है, मार्केटिंग आप कर रहे हो. सो नाउ अब हमें क्या करना है, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है. सो एक्टिविटी हम यहाँ पे किस लेवल को फाइनेंस करें, कि मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, या ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीडेड, यानी कि अब हमारा सिर्फ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जा चुका है, मार्केट में प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है, अब उस प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए. तो उस पर्पस के लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कि जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर पाए, अपनी मार्केट और ज़्यादा लोग, नंबर ऑफ जोन्स तक फैला पाए. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन सेकंड स्टेज इज देयर, व्हिच इज हैविंग द सफिशिएंटली हाई रिस्क. Next is the third stage, that having the period funds locked for the 1 to 3 years. The risk is medium, because अब आप मार्केट एक्सपेंड करने तक तो जा ही चुके हो. सो यहाँ पे मार्केट आपका एक्सपेंशन हो चुका है और एक्विजिशन हो चुका है. एंड नाउ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अब क्या है, यहाँ पे वो कंपनी क्या प्रॉफिट मेकिंग तक पहुंच चुकी है, जिससे कि आपने मार्केट जितना एक्सपैंड करना था वो आप मार्केट एक्सपैंड भी कर चुके हो, आपके प्रोडक्ट ने मार्केट को एक्वायर भी कर रखा है, एंड योर कंपनी इज गोइंग इन द प्रॉफिट लेवल. तो अब आप क्या कर रहे हो, और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, नेशनली टू इंटरनेशनली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो. सो द रिस्क इज मीडियम. एंड द फोर्थ स्टेज, व्हेन यू आर फैसिलिटेटिंग द अदर पब्लिक इश्यूज, यानी कि जो पब्लिक इश्यूज हैं उन्हें आप फैसिलिटेट करने के लिए, अगर कुछ पब्लिक को कुछ इश्यूज आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के रिलेशन में, उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, या अदर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाह रहे हो, so that kind of things are there. So that's why they are having the low risk capacity, and the locking period is for 1 to 3 years. Okay, so thank you for today's lecture.
I hope you have got the points which I want to make you to understand. So thank you.